the Batla House terror case is concerned, ahead of Independence Day, the National Investigation Agency conducted search operations in Delhi and arrested one accused who was allegedly involved in the activities of the ISIS module case. The accused was identified as Mohsin Ahmed, who is a resident of Batla House in New Delhi. Is the terrorist in disguise of Jamia Millia Islamia University student arrested by NIA from Batla House area of Southeast Delhi? He was in touch with his commanders in Afghanistan and Syria, is what we are getting to know. NIA and India's premier intelligence agency both were keeping an eye on him since the last 6 months. Well, the videos are emerging from the same house in Batla House area where the accused was staying. The information coming out from sources says that the investigation of the matter is going on about the PFI connection, and NIA is also in constant touch with Delhi police. The information of the same sources also says that the conspiracy was woven in the schools and colleges of a community on the pretext of finding talent. Well, of course, the angle of cryptocurrency has also come to the fore in this matter. My colleague Naveen Nishant joins us on the broadcast to give us more inputs. Naveen, are you there with us? Yeah. All right. Naveen, help us understand this person who is now being arrested in case of this terror module from Batla House. We're getting to know that there is an angle of cryptocurrency involved and also the PFI is also somehow linked. जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि मोहसिन अहमद को कल देर शाम एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था बटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन से, और उसके जो हैंडलर हैं वो अफगानिस्तान और सीरिया में थे। जो मोहसिन अहमद है वो यहाँ पर फंडिंग का काम करता था अपने हैंडलर्स के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंड्स ट्रांसफर होते थे वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होते थे। आमतौर पर जब भी आतंकी संगठन द्वारा किसी प्रकार के फंड का ट्रांसफर किया जाता है तो हवाला के जरिए फंड्स को ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन पहली बार ये निकलकर सामने आया है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड हैंडलर्स को ट्रांसफर किए गए हैं। तो एनआईए के लिए भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि अब जो आतंकवादी हैं वो हवाला का ना इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए पढ़ा लिखा और तकनीकी रूप से जानकार होना चाहिए। लेकिन जो पकड़ा गया है आतंकवादी मोहसिन अहमद, वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो अपने हैंडलर्स हैं जो अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे हैं उन्हें वो फंड ट्रांसफर कर रहा था। इसके साथ ही एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जामिया और उसके आसपास के इलाकों में वो युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, क्योंकि वहां पर कई सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और उन्हें अपने संगठन में भर्ती करना चाहता था। इसकी सूचना जब कुछ छात्रों को इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। मूल रूप से जो मोहसिन अहमद है वो पटना दीघा का रहने वाला है और यहाँ बाटला हाउस में पिछले 6 महीने से रह रहा था, और यहीं पर रहकर वो तमाम जो फंडिंग है वो जुटा रहा था ताकि वो अपने हैंडलर्स को अफगानिस्तान और सीरिया क्रिप्टो करेंसी के रूप में भेज सके। All right, Naveen, thank you for giving us those inputs. I've also been joined by former ACP Ved Bhushan, who's joining us on the broadcast. Welcome to the broadcast, sir. What do you think, should be the after movements for this person who is now, arrested, and he was arrested from Jamia Millia University, which is, we can see that there is so much danger which is posed to the students who are studying there, because this person is linked to the ISIS, and the Delhi police is also probing the angles of PFI and cryptocurrency which is also involved. प्रियंका, देखिए, ये यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और यूजीसी से इसकी सैंक्शन है। हमेशा चर्चाओं में रही है। जहां आप बैठे हुए हैं वो जो एरिया है बाटला हाउस, ओखला और जामिया, ये दिल्ली के अंदर हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी इसके अंदर रही है। क्योंकि ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इसमें फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास तौर से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और ये एरिया तमाम जो ओखला है, बाटला हाउस है, जामिया है, तमाम मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और कई तरह के एलिगेशन आपने बहुत पहले लगते रहे। अभी आपको याद होगा ये एनआरसी के दौरान जो बड़े लार्ज स्केल पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे उसमें जामिया यूनिवर्सिटी का नाम बार बार निकल कर आ रहा था।
हालांकि जेएनयू का नाम भी निकल कर आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी निकल कर आया, पर जामिया उसमें नंबर 1 था। जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और बाद में वो कल्मिनेट हुए शाहीन बाग पर। शाहीन बाग और एरिया बिल्कुल हाई डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर के अंदर में तमाम एरिया है। मैं खुद गया था, वहाँ की दीवार, वहाँ की पोस्टर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी को कलर किया गया था एक पर्टिकुलर कलर द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, कुछ एलिमेंट्स के द्वारा, तो ये तमाम जो चीजें हैं अब वो धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। पुलिस को एंट्री करने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी थी, आपको याद होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स हैं और जो आसपास जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर इस तरह के लोग अक्सर रहते हैं और उनमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी होते हैं जिनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। वो ऐसे मौकों के इंतजार में रहते हैं कि जब डिस्टर्बेंस उस एरिया में क्रिएट की जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, और जब पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाए तो एक ऐसा मैसेज जाए कि देखो हिंदुस्तान की जो दिल्ली की पुलिस है बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रही है, जाती कर रही है। जिस तरह से जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको भड़काया गया पर्टिकुलर काम करने के लिए। अब जो ताज़ा मामला एनआईए ने जो अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, ये बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट इसलिए है क्योंकि इसमें पीएफआई की जो फंडिंग हो रही थी, पहले एक ट्रेडिशनल फंडिंग होती थी कि पैसा बैंक के थ्रू आ रहा है या कैश के द्वारा आ रहा है या आंगनबाड़ी बोलते हैं जो दलाल होते हैं उनके थ्रू आता था, परंतु ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको पकड़ पाना मुमकिन ही नामुमकिन है, क्योंकि ये पासवर्ड और डिजिटल करेंसी है और अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है। हालांकि हिंदुस्तान इस करेंसी की अभी तक सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है आरबीआई को या हमारी सरकार को एक्सेप्टेबल नहीं है, परंतु कुछ एलिमेंट्स हैं इसको प्रोफेशनल बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते रहे और बड़ी लार्ज स्केल पर नंबर 2 का पैसा जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये जो खुलासा हुआ है जो खास तौर से क्रिप्टो करेंसी के एंगल को लेकर, ये बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट इशू है सरकारों के लिए। तो इसलिए आपको याद होगा इससे पहले भी शर्जील इमाम एक स्टूडेंट थे, हालांकि वो स्टूडेंट जेएनयू के थे, परंतु जामिया में उन्होंने जिस तरह से एक भाषण दिया था, आपको भी याद होगा कि उसी भाषण की वजह से वो लंबे टाइम तक जेल में रहे। अभी वो मामला इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, ट्रायल के अंदर है, वो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो ये जो सारा मामला है, जो वहाँ पर संगठन बने हुए हैं, जो मुस्लिम सो कॉल्ड संगठन है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को प्लेयर अप करते रहते हैं, जब भी उनको मौका लगता है वो छोड़ते नहीं था। तो जो ताज़ा मामला जिसमें अभी ताज़ा अरेस्ट अभी पुलिस ने एनआईए ने की है, अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनआईए पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर्स होते हैं। यदि पब्लिक में लाए जाए तो बड़ा ह्यू एंड क्राई मचेगा। ये तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, कोर्ट में चार्जशीट आएगी, तब तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। और उम्मीद है कि शायद क्रिप्टो करेंसी या इससे जुड़े हुए लोग एक लोग नहीं होंगे, किन किन लोगों के इसने संपर्क में रहा, इसकी तमाम व्हाट्सएप चैट, इसके लिंक, और अफगानिस्तान और सीरिया में किस तरह से ये कैसे कनेक्ट हुआ, वहाँ से क्या इनपुट मिलते थे, तो कितना पैसा मिलता था, ये तमाम चीज़ें कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, सब्जेक्ट है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अब धीरे धीरे एनआईए करेगी और उम्मीद है कि काफ़ी लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे। कैसे इसने मकान वहाँ प्रोक्योर किया, क्या वहाँ कोई क्लियरेंस ली, लोकल पुलिस स्टेशन को बताया नहीं बताया, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है रियंका। तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम्स, उसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के और खुलासे हो सकें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.